एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए पहले अर्नब गोस्वामी के लिए, जोरदार, मजा आना चाहिए ये बात। वेलकम अर्नब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आप हर साल आते हैं और हर साल हमारा ये इंस्टीट्यूट, हम सब लोग वी लुक फॉरवर्ड। ये यंग लोगों के साथ आपका क्या कनेक्शन है जो आपको देखते हैं ये सीटियां तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं, ये कोई खास कनेक्शन है? मानक थैंक यू। तीसरी बार आ रहा हूँ आज आइसोम्स में। पिछले साल भी आने वाला था मगर कुछ पर्सनल ऐसी परिस्थिति हो गई कि मैं आ नहीं पाया। सो आई एम वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई कुड नॉट कम लास्ट ईयर। कैन यू ऑल हियर मी? What does ISOMS want to know? You have to tell me what ISOMS is. You asked me, Manak, Hindi English में mix करके बोलूँ तो चलेगा ना? वैसे समझ, as long as you understand me, it's okay. I think young people in this country don't want rubbish anymore. Young people in this country are fed up with the way things have happened in this country. Young people in this country don't believe in the chalta hai attitude. Do you believe in the chalta hai attitude? Young people in this country don't want to have to give a bribe for everything. Young people in this country want merit more than anything else. They want an equal opportunity. They say and they look up at their older generation and say that the way that things have happened for you will not be the way we will want our country to be. The young people of this country will not allow themselves to be divided by caste and by religion. I am the generation that came out of college after 1993, after economic reforms in this country. And you know what was happening when I was in college? Should I tell you that? When I was in college, and I entered college, I was 16, 17 years old. In my first year of college, I entered Hindu College, Delhi University. You know the Hindu College, North Campus? And in my first day of college, I was told, Manak, that don't go to college. There used to be a youth special bus. I was about to take the youth special to college, and I was told, don't go to college today. I said, why should I not go to college? They said, because you will face the brunt for your name. I said, what is wrong with my name? मेरी नाम में क्या खराबी है? तो उन्होंने बोला कि मंडल कमीशन हो चुका है। राजीव गोस्वामी करके एक युवक थे 1990 में, जिन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया था मंडल कमीशन के टाइम पर, और मुझे बोला गया कि तुम हिंदू कॉलेज मत जाओ क्योंकि आज तुम स्टूडेंट नहीं हो, आज तुम फ्रेशर नहीं हो, आज तुम हिंदू कॉलेज के छात्र नहीं हो, आज तुम सिर्फ गोस्वामी हो और तुम्हें सिर्फ अपने कास्ट से जाना जाएगा। 1990 में, जो 1990 में हुआ था, आज 7 years later, I want to ask this audience, will you be divided on the basis of your caste? In 1992, by the time we were in first year, second year of college, I used to see movies at Chanakya Cinema. Manak, you have gone to Chanakya Cinema? Yeah, of course. Who hasn't gone there? In Chanakya Cinema, we used to see the second show. And we used to come back on motorcycles. And we were driving on motorcycles and we used to wear bandanas. They're out of fashion now, right? Bandanas. I was stopped near Chandni Chowk. And we were told by policemen, what are you doing in the middle of the night? We said, we've seen a movie in Chanakya Cinema and we are coming back. And the policeman said कि आपको इस समय रात को मोटरसाइकिल में इस रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं आज बाबरी मस्जिद गिराई गई है। तो पहले साल में मंडल कमीशन, दूसरे साल में बाबरी मस्जिद। सवाल मानक ने पूछा, why do young people like you? Because I know that today's young people will not allow a Mandal Commission or a Babri Masjid to divide them on the basis of their caste and their religion. I want this generation to be in India, work in India, and change India. I don't want this generation to be frustrated by the way India had become. So all the stories that you spoke about, the Commonwealth Games scam, 2G scam, Devas ISRO scam, Kargil for profit scam,
Nirbhaya, all the questions that I have asked are on behalf of these people. These people, Manak, want change, and these people want change now. I speak for these people. I'm much older than all of you, but I feel I speak for you. I speak for your generation. And as long as I am in this profession, I will always speak for this generation, Manak, not for my generation. अर्नब, आपको 5-6 महीने हो गए कैमरों से दूर गए हुए, करीब 6 महीने अब होने वाले हैं, लेकिन कैमरे देखते ही आपको अचानक कुछ हो जाता है ना. वी वर टॉकिंग टू अर्नब इनसाइड ऑफ द कैमरास बिहाइंड द स्टेज. इतने सॉफ्ट स्पोकन है, लगेगा नहीं शायद आपको कि सॉफ्ट स्पोकन है. कैमरा आते ही सामने अर्नब. देखो मानक, जब मैं कैमरा जब नहीं होता है तब मैं सुनता हूँ, जब कैमरा चलता है तो मैं बोलता हूँ. तो मैं अंदर आप लोगों को सुन रहा था, मगर दिन भर अगर सुनता रहो तो मुझे बीमारी हो जाएगी. पर मिस तो कर रहे होंगे आप, कैमरेज मिस तो कर रहे होंगे, कैमराज, स्टूडियो, कैमरा लाइट्स. मिस नहीं कर रहा मैं मानक, कैमरा मैं नहीं मिस कर रहा, मैं 9 बजे मिस कर रहा हूँ. मैं जो न्यूज़ार है और जो असली न्यूज़ार है, मैं उस असली न्यूज़ार को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2 घंटे में मैं अपने आप को कंप्लीटली आई बिकम फ्री, आई एंजॉय माई सेल्फ एंड आई स्पीक माई माइंड. एंड लास्ट 4 months so many things have happened where I felt that I really felt like I wanted to go back to the studio once again. Suresh Kalmadi became, you know Suresh Kalmadi? He's one of my best friends, you know that. Suresh Kalmadi almost became life president of the Indian Olympic Associations. That's when I missed being on TV. When anti-nationals are being celebrated as heroes in college campuses, when people who speak against India and talk about Bharat ki barbadi are made heroes in college campuses, that's when I missed being on TV. When the same people whose only claim to fame was to say Bharat ke tukde honge, they are made into the heroes for the younger generation in Ramjas College, that's when I wanted to come out and say, I too am a student of the same campus. I studied in Hindu College 200 meters away from Ramjas College. I wanted to come out and say, don't make heroes of people who are against the nation. That's when I missed being at 9 o'clock. So there have been, when Masarat Alam was freed, and when Masarat Alam, a known terrorist, is being treated like a VVIP in Jammu and Kashmir just because Mehbooba Mufti wants to buy peace with him, ताकि इलेक्शन के पहले कोई तकलीफ नहीं हो महबूबा मुफ्ती को, मसारत आलम जैसे आतंकवादी को वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में, तब मुझे लगता है कि मुझे 9 बजे टीवी पर होना चाहिए. अब क्या होगा मुझे पता नहीं है, बट आई टेल यू वन थिंग मानक, पीपल से व्हाई डू यू शाउट सो मच, आप इतने चिल्लाते क्यों? आई हैव वन आंसर टू देम. इन दिस कंट्री यू डोंट शाउट एंड यू विल नॉट बी हर्ड. यानी कि आप चिल्लाएंगे नहीं तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा. डू यू एग्री विथ मी ऑन दैट? Is that a good enough answer to your question, Manak? I have missed being on TV, but not for myself. I have not missed the camera. I have missed communicating. I want to talk to my audience. When I look at the camera at 9 o'clock, something happens to me. I look at the camera and I say, that is one person listening to me, one person. That's one great lesson that Prannoy Roy taught me. The first day I was going to go on TV, and I told Prannoy I'm very nervous. And Prannoy said, remember Arnab, in that one camera is one person. Not 10,000, not 1 lakh people. सिर्फ एक आदमी है. आप में से कई सारे रिपोर्टर, एंकर्स भी बनना चाहेंगे या प्रोड्यूसर्स बनना चाहेंगे. The camera is one person. Don't think, when I left NewsR, I used to have 25 million people watching me every night. अगर मैं कैमरा की तरफ देख के बोलूं कि इस समय 25 million people are listening to me, then I will feel very nervous. But if I feel there's one person, one human being listening to me, then I will talk my language. I miss speaking. I really miss communicating to that one person sometime. But Manak, another 5, 6, 7 weeks, I don't know. I hope you will all watch my channel. What's the name of my channel? And I have not put out a single ad. Have I put out a single ad?
लोग कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, फिर भी लोग चैनल का नाम नहीं जानते। हमने एक पैसा खर्चने का, आप जानते हैं, दिस इज आवर लव, दिस इज आवर ब्लेसिंग एंड दिस इज योर सपोर्ट। सो व्हेन आई कम बैक एट 9 o'clock, और देखिए मानक अभी सोच रहे हैं कब तक बोलते रहेंगे, इनका आंसर खत्म नहीं होता है। मानक देखो, कल मुझे फिकी फ्रेम्स में बुलाया तो मैंने उनको बोला आपने मुझे 20 मिनट बोलने का समय दिया है, दैट इज द लेंथ ऑफ माई एवरेज क्वेश्चन। बट आई मिस बीइंग ऑन टीवी, आई मिस बीइंग ऑन टीवी वेरी मच, बट आई एम गोइंग टू बी बैक सून। सो अर्नब को आपने अब से पहले सवाल पूछते देखा होगा, जबरदस्त देखा होगा, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जब से ये अपने पुराने चैनल से अलग हुए, तब से कहीं कहीं आपने इनको सवालों के जवाब देते हुए भी सुना है। तो आज यहां से शुरू करते हैं। अर्नब, व्हाट इज रॉन्ग विथ टुडेज मीडिया अकॉर्डिंग टू यू? आज के मीडिया में, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, बहुत आरोप पर्सनली भी हम सुनते हैं, दैट मीडियाज क्रेडिबिलिटी इज एट एन ऑल टाइम लो। क्या गलत है हमारे मीडिया में आज, जो पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को ये सब सुनना पड़ रहा है? कई सारे चीज गलत है। पहला है कि बहुत सारी मीडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, ये हमें मानना पड़ेगा। रिपोर्टर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं मानक, एडिटर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है जर्नलिज्म में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मगर कई जगहों में मैंने देखा है कि जो टॉप में है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर जो टॉप में है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो रिपोर्टर फ्री नहीं हो सकता है। पिछले 8 सालों में लोगों ने मुझे बोला है कि क्या मुहिम है आपकी, जो आपने इतने सारे स्कैम्स तोड़े, आपने इतने सवाल पूछे। तो मुझे लगा कि माई ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मीडिया इज टू मेक माई रिपोर्टर फ्री। ट्राई वन डे, देयर आर मेनी एडिटर्स इन दिस रूम, मेक योर रिपोर्टर फ्री। आप अपने रिपोर्टर्स को पूरी फ्रीडम दे दीजिए, फिर देखिए वो कौन सी स्टोरी लाते हैं, वो कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, वो कौन से लाइंस लिखते हैं, वो कैसे सवाल उठाते हैं। मगर आप अगर वो फ्रीडम नहीं देते हैं तो वो गलत होता है। दूसरी बात यह है कि मीडिया जो है बहुत ज़्यादा दिल्ली में फोकस्ड हो चुकी है। अब बुरा ना माने, मैं नोएडा में बोल रहा हूँ, मीडिया इन इंडिया हैज़ बिकम सेंटर्ड ऑन दिल्ली। ये देश दिल्ली से नहीं चल सकता है। 5/5 किलोमीटर जोन में आप सारे भारतीय मीडिया को वहां पे सेंटर कर दे तो भारत की कहानी आप नहीं बता सकते। इंडियन मीडिया हैज बिकम लुटियनाइज्ड। ये बहुत जरूरी है कि इंडियन मीडिया हम रियलाइज करें कि दिल्ली से नहीं चल सकती है। ये इंडियन मीडिया मुंबई से चलेगी, पटना से चलेगी, यूपी से चलेगी, असम से चलेगी, कलकत्ता से चलेगी, केरला, बेंगलुरु, श्रीनगर से चलेगी। इतनी ज्यादा आप मीडिया की ओवर सेंट्रलाइजेशन कर चुके हैं दिल्ली में कि कभी कभी हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल मान के चलते हैं आजकल कि भविष्य का प्रधानमंत्री मैं हूं, क्योंकि सारी मीडिया सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर फोकस करती है। देयर इज टू मच ऑफ अ फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। यू नीड टू फेडरलाइज मीडिया, you need to decentralize media. You need to realize that even when there is no Jallikattu, you need to look at Tamil Nadu. Even when there is no flood, you need to look at what is happening in Jammu and Kashmir. Are you understanding what I am saying? Absolutely. And the next generation has a responsibility to do that. I'll give you one example. Manak, New Year Eve पे बेंगलुरु के जो मेन रोड है, MG रोड, 30 women got molested on the broad streets at New Year's Eve. Did you hear about it? 30 women in MG Road in Bengaluru, which is a cosmopolitan city of India. What was the Indian media covering? You go back and see every channel. All the Indian media was covering was the Jugalbandi between Mulayam Singh Yadav and Akhilesh. That was a Jugalbandi. Nobody covered in as much detail the incident of the women being molested in Bengaluru. There were 1,500 policemen in Bengaluru when it happened. 1,500 policemen थे, मगर 30 औरतों को openly खुलेआम molest किया गया। आप मुझे बताइए, आप लोग budding journalists हैं, कौन सी बड़ी story है? Is Akhilesh the bigger story? Or is the story of 30 women being openly molested in front of 1,500 policemen, is that the big story?
Which is the bigger story? If Bengaluru is the bigger story, why is Bengaluru not being covered? Because all the channels are operating out of Delhi. Decentralize, open up Indian media, and you will see the focus changing. SUM fire tragedy हुई थी in SUM hospital in Odisha. So many people died. Not one of the channels of Delhi sent an OB van or covered it for 24 hours. I want to see today, if there is a similar fire, God forbid, which happens in an incident in Delhi, it will become the #1 headline of the country. We cannot ignore India. India is not in New Delhi. India must be covered. There are youth like you in other parts of India as well. This over-centralization of media is a terrible thing, Manak. And you and I need to work together to change it in the short term. ये तो बहुत पुरानी कहावत है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हिंदुस्तान शहरों में नहीं बसता, असली हिंदुस्तान गांव में, छोटे कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में बसता है। और ये शिकायत हम हमेशा से सुनते आए हैं कि टीवी मीडिया खास तौर पे उन इलाकों को नज़रअंदाज करता है। आपने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने की, बांटने की बात करते हैं, अब आज की ये जनरेशन उन लोगों को टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक आरोप मीडिया पर भी ये लगता है कि मीडिया भी देश को जोड़ने के बजाय देश को बांट रही है। सोसाइटी को मीडिया बांटने में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्लियर पोजीशन लेती है, कुछ इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं, और मीडिया बढ़ जाता है और उससे समाज बढ़ जाता है और देश भी बढ़ जाता है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? No, I don't agree. देखो मानक, मैं तो जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स जिसने लिखे हुए हैं मैं उनको नहीं मानता। मुझे तो जर्नलिज्म स्कूल में बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पे जाता हूं वहां प्रोफेसर रिग्रेट करते हैं कि इसको बुलाया। जो सब हमने पढ़ाया 2-3 सालों में सब उल्टा बोल दिया इसने। तो क्या बोला जाता है आप लोगों को? फैक्ट दिखाइए, तथ्य दिखाइए, राइट? तथ्यों पे फोकस कीजिए, बोला गया आपको? तथ्य 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 तथ्य। मैं कहता हूं तथ्य तो सबके पास है, क्या फर्क पड़ेगा? और एक तथ्य आप बता दे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप अपने फोन्स पे ऐप खोल लीजिए, इस वक्त आपके पास काफी तथ्य है कि नहीं है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, आपको चाहिए ओपिनियन। डिस्कशन के दिन चले गए। दिस इज द डे ऑफ डिबेट। You need opinion. I don't believe in anything but opinion based journalism. और मैं ये मानता हूँ that the more opinion there is, the more truth there will be. Now let me give you an example, Manak. You all know what happened in JNU last year? Do you know the position that I took at that point of time? You know, all of Lutyens media. In Delhi, there is a phenomenon called Lutyens media, especially the English media. They all believe that all of India has studied in Dun school and speak English the Dun school way. And they believe that they represent the views of this country. Lutyens media was supporting those students who were saying Bharat ki barbadi at JNU. Were they or were they not? Directly, indirectly, उन्हीं लोगों को support कर रहे थे। मैं भी जाता but I don't agree with their point of view. At that point of view, at that time, one person came on my program and started saying the same things. I questioned him. वो जो clip आपने दिखाया था, एक छोटा सा clip उसका भी था। उसके बाद JNU came into prominence. For 1 month, Manak, I put my point of view on JNU clearly before the people. I said I was against Kanhaiya. If people are talking about Azadi, they are using the word Azadi in a certain context. When we question the same people like Kanhaiya, they say we are not talking about Azadi from India. We are talking about Azadi from Bhukmari, Azadi from Garibi, etc. etc. वो अपने दिल में झांक के पूछे कि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, किसी और आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो सच नहीं कह रहे हैं। जो JNU में हुआ था वो गलत था, उसको हमने एक्सपोज किया। 1 महीने हमने इस पर सवाल उठाए। You know who opposed me the most? Do you know who opposed me the most? The English media of New Delhi. All the English media of New Delhi was opposing me the most.
Anchors who have no viewership were questioning me. There were marchers out there saying that I have done bad journalism. But that is my point of view, Manak. I believe that what happened in JNU was unacceptable. Now, if I put a question to you, by raising those questions against the anti-nationals, am I dividing India? Should I put a cover on it? Should I put a shroud on it and say it never happened? क्या मैं ये कहूँ कि JNU में जो हुआ था वो नहीं हुआ था? Afzal Guru was being celebrated at that point of time like a hero. You remember that? There were people who went to the press club and booked a hall in press club to commemorate Afzal Guru, to celebrate Afzal Guru. Should I be quiet about it? I feel it's a disgrace on my profession. And I think it's an absolute disgrace on my profession that there are journalists today who celebrate those people who constantly speak about the division of India. These people don't represent India. And I have the right to question them. Whether it be Prashant Bhushan, whether it be Prashant Bhushan or Arundhati Roy. Prashant Bhushan and Arundhati Roy don't represent India. I have my point of view too. They don't represent me. For far too long, Manak, in this country, the English media has dominated. The English TV media has decided what is right and wrong. I have now decided to stand against them. And I am saying quite openly today that the time has come for us to come out and question people. By questioning people, I am not dividing this country. By raising questions and debating issues, I am not dividing this country. I am bringing issues to the fore, to the public limelight, so that people know about it, discuss it, and debate it. Let me give you one example. Do you believe triple talaq is good? Why has it never been questioned before? Why was I the first journalist who came on air at 9 o'clock and said, change triple talaq? Why was the Uniform Civil Code never asked for before? Ask yourself these questions. These questions were never asked because it was seen to be politically incorrect. Am I dividing this country by asking questions about triple talaq? You remember the story when a woman was not allowed into a temple called Shani Shignapur की मंदिर थी महाराष्ट्र में. औरतों को अभी भी वहां पे जाने की अनुमति नहीं है. आपको याद है? हम अंग्रेजी चैनल है मगर ये सब स्टोरीज भी करते हैं. पहले लोग कहते थे कि ये सब हिंदी चैनल्स की स्टोरीज है. हमने वो कैंपेन किया शनि शिग्नापुर पे. सबरीमाला के बारे में आपने सुना? सबरीमाला के बारे में आपने सुना कि अभी भी वहां पे women are not allowed, women between the age of 15 and 50. Did we question it or not? Am I dividing India, Manak, by raising questions about Sabrimala and Shani Shignapur? Am I dividing India, Manak, by raising questions about JNU, Shani Shignapur? You know the case of Haji Ali Shrine in Bombay. In Haji Ali Shrine in Mumbai, women are not allowed. Am I dividing India? Am I anti-Muslim by saying that women should be allowed into the Haji Ali Shrine? Am I anti-Hindu by saying women should be allowed into Shani Shignapur and Sabrimala? Am I anti-India by saying anti-nationals should not be allowed to go on with Bharat Ki Barbadi? I am not dividing India, Manak. I am raising relevant questions. I have the courage to raise those questions. You know the case of Zakir Naik? You know the name of Zakir Naik? For 20 years, this man has been preaching hate and using all forms of Salafi Islam, misusing it. Misusing Salafi Islam to spread hate and radicalize people. He sends people across and those people eventually join the Islamic State. Am I anti-Muslim or anti-India by raising these questions? I am neither of the above. I am raising the questions fearlessly and as openly. And I am raising these questions because I have declared my independence. I have declared my independence not just. I have declared my independence from the media. I have declared my independence from the fake media, from the compromised media. Me and my team of young journalists will now raise all questions. I don't need anything. I don't need security, but we will raise these questions. The only question is this: will we ask difficult questions or will we avoid them? That is my only question to you. Should I stop asking these questions or should I play safe? I only want to ask these questions. And I know that 2 days before I left Times Now, Anuradha ji, I'll tell you this. Just 2 days, here's my friend Satish sitting in front of me.
ये हमारे सीनियर हैं, इनके सामने हमें डर लगता है बोलने को. 2 days before I left Times Now, मुझे प्रोग्राम करने से बंद कर दिया. मुझे बोला आप प्रोग्राम नहीं कर सकते. मैंने बोला आप डरिए मत, मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ. आपने नोटिस किया होगा 18 तारीख 18th November was my last date. I was not allowed to enter my own studio. I was not allowed to enter my own studio. The studio I built. I was stopped. On the 14th of November, I said Arvind Kejriwal should stop the drama and start us calling for people at Jantar Mantar after Notebandi. I could not enter my studio. But on the 15th or 16th, I was very disappointed, Manak. I was very upset. When you build an institution and you're not allowed to enter your own studio, you feel sad. It hurts you somewhere. But on the 15th or 16th, I got a phone call from a reporter of mine. He said, boss, बहुत बड़ी खबर है. I said, बताओ. बोला कि मुंबई हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि हाजी अली दरगाह में men and women will have the same rights. I felt so happy. I felt so happy, and people who have reported, and many people in the front row who have reported with me, we are the same generation. I have also reported. I know कि धक्का खाना क्या होता है. सवाल हम भी पूछते थे गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 में. अभी फर्क सिर्फ एक है कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 के बारे में बाहर हम माइक लेकर दौड़ नहीं रहे हैं पॉलिटिशियन के पीछे. पॉलिटिशियन बैठा हुआ है, हम स्टूडियो से सवाल पूछ रहे हैं, प्रेशर हम डालते हैं. मुझे लगता है कि ये जो पीढ़ी है वो उनको पता होना चाहिए हमने कितने स्ट्रगल्स किए हैं पिछले 20 साल से. मैं आपको और एक आज कहानी कहना चाहता हूँ. देखिए, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग आंसर बट आई विल टेल यू द ट्रूथ. मैं 23 साल का था, रिपोर्टर था इधर. सब कुछ छोड़ के मैंने भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था, मुझे भी एमएनसी में नौकरी मिल सकती थी, मगर मैंने चूज़ किया कि मैं रिपोर्टर बनूंगा. जब हम रिपोर्टर थे तो पता नहीं इनमें से कितनों ने 30,000 कोर्ट्स में जैन हवाला कांड कवर किया है. मैं हर सुबह 30,000 कोर्ट जाता था और हर सुबह वहाँ पे खड़ा रहता था 23 नंबर कोर्ट के बाहर, और कल्पनाथ राय, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब आते थे. खराब मूड में थे हमेशा, सबको पेशी देनी होती थी. और हम वो बहुत ही एक गहरा सवाल है जर्नलिज्म में जो हर जर्नलिस्ट पूछता है, जो मैंने भी पूछा. बाहर आते थे, वो और बुरा मूड था, गर्मी थी, और हम माइक लेके जाके पूछते थे आपको कैसा लग रहा है. मार खाते थे हम दिल्ली पुलिस से, मार खाते थे हम, डेली मार खाते थे. मार खाने से कोई कष्ट नहीं होता है, मगर एक बार गेट नंबर 4 के बाहर एक लॉ मिनिस्टर थे, उनका नाम था रमाकांत खलप, गोवा के थे. सवाल पूछा था उनको मैंने, उनको अच्छा नहीं लगा जिस टोन में मैंने सवाल पूछा. वापस गया तो मुझे हमारे सुपर बॉस ने बुलाया रूम पे और बोला कि आपने कानून मंत्री के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है. मैंने बोला मैंने नहीं किया है. बोले नहीं आपने किया, आप जाके क्षमा मांगिए. और मुझे 23 साल की उम्र में उनके पास जाके मुझे बोलना पड़ा दैट मिस्टर खलप, आई डोंट नो व्हाई यू आर अपसेट बट ओके, आई एम सॉरी. यू नो व्हाई आई सेड दैट? You know why I said sorry? Because I had to pay my rent. Because I had to keep my job. It's not nice. It's not easy for an honest reporter to say sorry to a politician for no fault of his. I want you to know this today, that my generation has been through a lot of struggle. And I came to this city with nothing, Manak. I first came to this city for a job. I could not get a job. I had to go to Calcutta. क्योंकि इधर कनेक्शन के, जब हाथ में कनेक्शन नहीं होता है, किसी के नंबर नहीं होते, तो नौकरी नहीं मिलती है. ऑक्सफोर्ड का पोस्ट ग्रेजुएट था मैं, स्कॉलरशिप से गया था, केंद्रीय विद्यालय से लेके हिंदू कॉलेज, फिर ऑक्सफोर्ड पहुंचा. जब मैं वापस आया ऑक्सफोर्ड में, दिल्ली में मुझे जूनियर सब एडिटर की नौकरी नहीं मिली, क्योंकि हमारे लिए रिकमेंडेशंस देने वाले कोई नहीं थे. ये सब आपको मैं आज ये कह रहा हूं ताकि आप हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझें. ये सब होते हुए हमने स्ट्रगल किया. आज जब मैं कोई पोजीशन में पहुंचा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए. क्या मैं सॉफ्ट बन जाऊं कि अगले जो 15-20 साल है मेरे जर्नलिज्म के प्रोफेशन में जो मेरे में है, और मुझे तो लगता है मरते दम तक मैं रिटायर नहीं करूंगा. मैं आपको पूछ रहा हूं मैं क्या करूं. मैं अपने लिए कोठी बनाऊं, घर बनाऊं, खूब सारे पैसे अर्न करूं, या मैं कोई चेंज लाऊं. मैं चेंज क्यों ला रहा हूं? मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने अपना चैनल शुरू करने की मेरे में ये मुहिम क्यों है? क्योंकि मैंने जो कहा, आई हैव डिक्लेयर्ड माई इंडिपेंडेंस
And I want you to know this. It is a big risk we take. We take this risk because we believe in you. We believe in you. And people tell me, Manak, how will you launch your channel? I say I'll launch my channel because the people of this country love my journalism. That's all. I am not making a speech here, Manak, but I have not divided India. I have raised questions. The issues that I have raised are relevant. They have made a change. And finally, Manak, I will ask you a few questions now. I have only one question to ask you, Manak. और देखो, ये तो होना ही था. My question to you, Manak, is, would we be a better India or a worse India without the journalism that we did? आप 2G, CWG, आदर्श ये सब निकाल लीजिए, आप pretend कीजिए कि कुछ नहीं हुआ. Would we be a better India or a worse India without the journalism of the last 7 years? That's my question to you, Manak. Answer me. Can I say no comments? No, I won't. It's not a choice. No, not at all, not at all. नहीं अर्नब, इस पर मेरे ख्याल से शायद कोई बहस भी नहीं होगी कि जिन 5, 7, 10 सालों की आप बात कर रहे हैं उसमें जितने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप घोटाले सामने आए और उसको सामने लाने में आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वो आपकी उस मुहिम ने. उसके लिए पूरा देश मेरे ख्याल से आपको मानता भी है, पूरा क्रेडिट भी आपको देता है. अगर वो घोटाले सामने नहीं आते तो शायद आजकल जो हम ये करप्शन के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम देख रहे हैं वो शायद नहीं होती. It's a fact. Let's accept it. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अर्नब, मुझे भी सवाल के जवाब देने की आदत नहीं है, मुझे भी पूछने की आदत है. So let me come back to questioning. आपने कहा आपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है अपनी मीडिया से, फेक मीडिया से. लेकिन ओपिनियनेटेड मीडिया में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि कुछ चैनल्स, कुछ जर्नलिस्ट के सारे ओपिनियंस एक ही पार्टी के सपोर्ट में होते हैं या एक ही आइडियोलॉजी के सपोर्ट में होते हैं? इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि हर पार्टी, हर गवर्नमेंट और अपोजिशन बोथ सबके सपोर्ट में, सबके खिलाफ इशू बेस्ड आपकी मुहिम होनी चाहिए. ये एलिगेशन बहुत ऑफन लगता है कि कुछ चैनल्स, कुछ जर्नलिस्ट एक पार्टी, एक आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और दूसरी पार्टी दूसरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं. तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? मैं दूसरे जर्नलिस्ट के बारे में नहीं कह सकता, मगर मई 2015 में 1.5 महीने हमने एक स्टोरी की. स्टोरी का नाम मानक था ललित गेट. 3 दिन स्टोरी करने के बाद बाकी दिल्ली के चैनल्स ने मुझे फॉलो किया. वो स्टोरी प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी नहीं थी. इट वाज अ प्रो पीपल स्टोरी. पार्लियामेंट 1 महीने रुक गई थी ललित गेट को लेकर. आपको याद होगा सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे किस पार्टी के, आपको वो भी पता है. आप तो क्लियरली उनके इस्तीफे मांग रहे थे. बिल्कुल मांग रहे थे. तो हम कोई प्रो दिस पार्टी दैट पार्टी नहीं समझते हैं. दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 27 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की गलत जो अपॉइंटमेंट हुई है, वो स्टोरी भी हमने ब्रेक की थी. दिल्ली के किसी चैनल ने नहीं ब्रेक की थी. वो स्टोरी भी एंटी आप प्रो आप नहीं थी, वो प्रो पीपल स्टोरी थी. जितने सारे स्टोरीज हमने कांग्रेस के खिलाफ किए, लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, वो प्रो पीपल स्टोरीज थे. और मानक, आई से इट विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड कि ऑल द पार्टीज ऑफ दिस कंट्री हैव बॉयकॉटेड मी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. आपके इधर बहुत गेस्ट कोऑर्डिनेटर होंगे, आप उनको पूछिए कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको बीजेपी ने भी बॉयकॉट किया, कांग्रेस ने भी बॉयकॉट किया और आम आदमी पार्टी भी बॉयकॉट कर रहे हैं. अब कांग्रेस क्यों बॉयकॉट कर रही है मुझे पता नहीं. दूसरे पार्टीज के बारे में मुझे पता है. मुझे सिर्फ ये पता है कि जनवरी 2014 में मेरी भेंट हुई राहुल गांधी जी के साथ. उसके बाद क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे पता नहीं. नाउ I am truly independent. I don't really care for any political party or ideology, and I'll give you a proof of that. I'll give you a real proof of that. जब अन्ना हजारे का एजिटेशन हुआ था उस समय 2011 में हुई थी. 2010 और 2012 के 11 के बीच में 6-7 कांड वहाँ पे all these scams were exposed. उसके बाद ये जो मार्केटिंग मैनेजर है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, in fact he is a great marketing manager. I would seriously recommend if you have a job in marketing, you should consider him.
There's nobody better than Arvind as a marketing person. I speak openly. I don't care for anyone. You know that. अरविंद केजरीवाल ने अपनी मार्केटिंग शुरू की मार्च 2011 के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि जितने स्टोरीज हमने उस समय ब्रेक किए, they were not this way or that. They were all absolutely clear stories. When Arvind Kejriwal broke his stories, we heard that he had a person called Prashant Bhushan who was with him. I don't agree with Prashant Bhushan's views on Kashmir because Prashant Bhushan constantly speaks about secession, giving separatists their voice, etc. But at that point of time, Manak, I even supported Prashant Bhushan because the issue that he was speaking about was corruption. So frankly, I don't really care about a person's political views or ideology. I speak about the issue at hand. Today, you may be from the BJP, I may disagree with you. But if the issue that you are speaking about is a relevant issue, makes sense and should be spoken about, I will support you. The media should not become political. The media should not fall in political camps. We are not pro-Congress media, pro-BJP media, or pro-AAP media. We should simply be pro-people media, and then you'll be truly free. I feel very liberated because I get abused from everyone, including a person called Subramaniam Swamy. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि इस सब के बुनियाद में वही होता है, उसी पर सारी डिबेट होती है। आप भी शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन लोगों का है जो आज़ादी के नारे लगाते हैं या उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका भी है और आपके जैसे बाकी लोगों का भी है जो आपको सपोर्ट करते हैं। जी, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर इतनी डिबेट मीडिया के लिहाज से क्यों होने लगी है? पता नहीं, आप उनको पूछिए, मुझे नहीं पता है। ये लोग तो हर चीज़ पे डिबेट करते हैं जो चीज़ डिबेट वर्दी नहीं है। अब लेटेस्ट डिबेट इनका और एक शुरू हो गया है मानक। जब नेशनल एंथम प्ले हो, हमें खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? ये डिबेट है। ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी कोई राइट नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करने के लिए। सब कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया है। ये लोग अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उस समय यूज क्यों नहीं कर रहे थे जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप तोड़ रहा था? तब चुप क्यों थे वो? जब मैंने मुहिम चलाई थी अशोक चौहान के खिलाफ, जब आदर्श घोटाला हुआ था, उसका नाम बदला था मैंने और उसको कहा था कारगिल फॉर प्रॉफिट, यानी कि आप कारगिल के नाम पर अपने आप को 7-8 करोड़ रुपए के फ्लैट्स दे रहे हैं मुंबई के कोलाबा में। तो उस समय वही सेम मीडिया, कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया चुप क्यों थी? तब उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां थी? ये चुप रहे थे इतने सालों से, मगर इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब याद आती है जब लोग कहते हैं भारत की बर्बादी, जब लोग कहते हैं कि हमें नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब कन्हैया जैसे युवक, वैसे वो युवक नहीं है, जब कन्हैया जैसे व्यक्ति कुछ भी बोलते हैं, मैं उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं मानता हूं। मैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मानता हूं जो मैं यूज करता हूं लोगों के लिए, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आई हैव रेज्ड क्वेश्चंस ऑफ रिलीजन। मेरे स्टूडियो में एक्टर है इरफान। इरफान ने एक बहुत बड़े मौलवी के साथ डिबेट किया और उनको पूछा कि आप ट्रिपल तलाक को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जाकिर नायक से ने 20 साल से मुंबई में इतना जहर कैसे फैलाया, उनको पूछना, उनसे सवाल पूछना, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये अननेसेसरी डिबेट्स जो हम शुरू कर रहे हैं ना मानक, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट आई विल टेल यू वन थिंग, दे हैव देयर राइट टू से व्हाट दे वांट, बट आई मानक विल नॉट गिव अप माय राइट टू से व्हाट आई वांट ईदर। शुड आई गिव अप माय राइट? आई विल होल्ड माय राइट, आई विल यूज माय राइट। पर ये तो हमेशा कहा जाता है अर्नब कि जहां रूलिंग पार्टी या कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जगह कम होती जाती है। अब हम देख रहे हैं बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है, पीएम मोदी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, यूपी में भी उनकी बहुत लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट है, उत्तराखंड में है, बाकी 2 स्टेट्स में भी उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है। देयर इज नो स्टॉपिंग द रूलिंग पार्टी दीज डेज। इसीलिए खतरा भी लोगों को अब लगने लगा है कि अब बोलेंगे, स्पेशली मीडिया, क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं, यहाँ जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, ऐसे में आवाज उठाने से पहले डर लगता है। ऑब्वियस है ये सवाल जहन में आना। ऑब्वियस नहीं है मानक, मुझे पता नहीं लोग डरते क्यों हैं इतना डर के क्यों रह रहे हैं आजकल।
लोग डरते हैं जब उनको छुपाना होता है कुछ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस आदमी ने कुछ किया है जो छुपाया हुआ है, तो उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आ गया, बहुत पावरफुल हो गया, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तब लोग डरते हैं, तब लोग डरते हैं। अगर आपने अपने घर को बनाने के लिए कुछ पैसे लिए हों किसी से, तब आप डरेंगे अगर आप जर्नलिस्ट हैं। अगर आपने कोई फेवर्स लिए हों, तब आप डरेंगे। अगर आपने फ्री में लैंड ले लिया हो किसी पॉलिटिशियन से, तब आप डरेंगे कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। मैं अपने बारे में आपको कह सकता हूं, जब कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हुई थी, तब मैंने एक मीटिंग की थी हमारे ऑफिस में। मेरे पास इतने सारे कागज थे और उस रात को मैं CWG स्कैम तोड़ने वाला था 9 बजे। तो मैंने एडिटोरियल मीटिंग की थी और मैंने दिल्ली और मुंबई के बीच में कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा कि आप ज़रा मुझे बताइए, मेरे सारे रिपोर्टर्स और एडिटर्स ज़रा मुझे बताइए, आप लोगों के पास क्या फ्री में पास मिला है आपको कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी का? तो 10 हाथ उठे थे। 10 लोगों को फ्री में पास मिली थी। और मैंने पूछा कि आप पास के पीछे देखिए, पास का वैल्यू क्या है? बोलते नो भाई, तो वो पास है, ये तो कुछ नहीं, हमें पास मिला है। मतलब पास की कमर्शियल वैल्यू कुछ है। तो आप देखेंगे कि रिपोर्टर को 500 रुपए की पास मिली थी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को 2000 रुपए की पास मिली थी, हाँ, इनपुट एडिटर्स को 5000 रुपए की पास मिली थी, और जो टॉप एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं उनको तो मंत्री के पास बैठने वाली 20,000 रुपए की पास मिली थी। उस दिन मैंने बोला था कि ये पास कल्चर बंद कीजिए, जितने पास से आप जला दीजिए और फेंक दीजिए। और आज के बाद आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि मेरे साथ अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आप किसी से पास के एक सेफ्टी पिन भी नहीं लेंगे। मैंने लाइफ में, मैं जो करता हूं, मैंने लाइफ में किसी से एक सेफ्टी पिन नहीं ली है, एक सेफ्टी पिन नहीं ली है मैंने। तो मैं किसी से नहीं डरता हूं। अब बाकी लोग क्यों इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप उनको पूछिए, कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा उनको डरने के लिए? मुझे नहीं पता है, कुछ कारण जरूर होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर बहुत ही अपने चैनल के थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए कि इतने पत्रकार दिल्ली में आजकल इतने डरे हुए क्यों हैं। कुछ तो होगा, मैं नहीं डरता, और जो रिपोर्टर्स रिपब्लिक के साथ है किसी से नहीं डरते। सुकेश सामने से कुछ सवाल पूछना चाहते। अर्नब, आपने जर्नलिज्म के लिए बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट किया, आपको सुन के अच्छा भी लग रहा है। आपने कहा कि आपने मिस किया कैमरा जब रामजस में कुछ हो रहा था। आपने ऐसे मौकों पे कैमरा मिस किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त भी कैमरा आपने मिस किया जब अमित शाह कसाब को लेकर आ गए इलेक्शन में, जब मोदी कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगे इलेक्शन के दौरान? क्या उस वक्त भी आपने कैमरा मिस किया जब योगी, जिनके हेट स्पीच हम सब सुनते हैं, आपने भी बहुत बार डिबेट किया, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए? क्या उस वक्त भी कैमरा आपने मिस किया जब मणिपुर में जो लोग पर्रिकर के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके साथ मिलके वहां पे मनोहर पर्रिकर की सरकार मिस कर गई? तब भी ये कुलबुलाहट थी आपके अंदर कि इसको भी एक्सपोज करना चाहिए, इस पे भी डिबेट करना चाहिए, तब मिस किया था? जी, हर वक्त मिस किया मैंने। और आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक तरफा जर्नलिज्म करता हूं, तो थोड़ा अपने मेरे बैकग्राउंड को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो लव जिहाद के बारे में मेरे से ज़्यादा सवाल किसी हिंदी चैनल ने नहीं पूछे थे। मेरे बैकग्राउंड को परख लीजिए भाई साहब, सवाल पूछने के पहले। मैं बिना वजह की आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहता। अगर आप ये कह रहे हैं कि 22 साल की जर्नलिज्म के बाद आप मुझे सवाल पूछेंगे और सवाल सिखाएंगे, तो मैं नहीं सीखूंगा आपसे, क्योंकि इन सब व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में आपने पूछा, आपसे ज्यादा मैंने सवाल पूछे हुए हैं। तो नहीं, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। मैंने अपनी बैकग्राउंड को मुझे इधर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ललित गेट मैंने क्यों ब्रेक की? सारी दिल्ली की मीडिया क्यों चुप थी? कॉमनवेल्थ गेम्स का मैंने क्यों तोड़ा? सारी दिल्ली की मीडिया चुप क्यों थी? आदर्श घोटाले के बारे में सब लोग चुप क्यों हो गए थे? कौन डर रहे थे अशोक चौहान के साथ? किसने कॉम्प्रोमाइज की थी? भूपिंदर सिंह हुडा के लैंड डील्स के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कितने जर्नलिस्ट ने फ्री में लैंड ली हुई है गुड़गांव में? सवाल आप पूछिए इन लोगों से। और ये भी पूछिए कि कितने मीडिया ग्रुप्स ने कितना लैंड लिया हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप सवाल उन लोगों से पूछिए। मैं तो कुछ नहीं डरता, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि मैंने किसी से ना लिया है ना लेने वाला हूं।
घबराहट हमसे नहीं होती है। आप जरा देख लीजिए, आपको मैं चाहूंगा आप रिपब्लिक के पहले दिन से रिपब्लिक देखना शुरू करें, आपको कुछ याद आएगा। जैसे जर्नलिज्म हमने शुरू की थी, किसी से बिना डरे हम स्टेशन से लेके सबको सवाल पूछते थे। उस समय सीताराम केसरी को भी, सोनिया गांधी जब पॉलिटिक्स में नहीं आई थी उनको भी हमने सवाल पूछे थे। जब देवेगौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय सो जाते थे उनको भी हम सवाल पूछते थे। सारे कांड हमने एक्सपोज किए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ गलतफहमी अपने दिमाग में रखें इसके बारे में। अच्छा, एक सेकंड, एक स्टूडेंट पहले अनिल, एक सेकंड में आ रहा हूँ। एक स्टूडेंट पहले यहाँ से सवाल पूछना चाहे। हाँ, पूछिए। My name is Sagar, sir, and we all are itching to ask you questions, and I have so many questions. Unfortunately, I can ask you only one. So, what we as journalists are witnessing, there is a certain kind of rivalry or a sense of animosity between the renowned journalists. I don't know if I can be allowed to take names, but I'm still No names, dreaming of prime time news channels anchors to come together and share a stage. And why has there been a rivalry between you and some other anchors? Why are we not witnessing that sense of togetherness and confront the government together? I'm sorry I didn't get your name, but I'll tell you, I assure you that in all my years, I have not made one statement. You find one statement of mine against any journalist that I have made. I know the people you are talking about. Some of them have been my bosses. You will not find one statement that I have made personally against any of them. Why they tweet against me, why they write against me, why they comment against me is something which is their prerogative. But I assure you, in all my years, and I stay in Mumbai, why they don't like me, I don't know. I have no problem with any of them. I just want to be allowed to do my job. I should be allowed to follow my dreams. You are very right in what you're saying. There should be a sense of camaraderie between journalists. But sometimes it happens also maybe because of a competitive spirit. You see, let me be very honest. Cross the with line, you. Arnab. It really crossed the line. जो but- comments आए थे वो बहुत ज़्यादा। मेरी तरफ से एक भी कमेंट नहीं था माना। हाँ, you're right. आपने मेरे शायद बारे रिएक्ट में- भी नहीं किया था, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। मुझे No, I have not. No, I have not. You find one comment of mine where I have called anyone anti-national. Now, I'll tell you one thing. If a journalist gets praise from Hafiz Saeed and 2 days later wants to distract attention from Hafiz Saeed's praise and starts imagining that Arnab has taken my name, then the person should prove where has Arnab taken your name. Otherwise, I might come to the conclusion that it may be an attempt by the journalist in question to distract attention from the glowing praise that she received from the Lashkar-e-Toiba chief, Hafiz Saeed. I have not mentioned any journalist, even now I am not mentioning any journalist. My fight is not with these people. I want to grow the number of people watching news. That's all that I want to do. अनिल यहाँ से सवाल पूछिए। अर्नव, एक मेरा थियोरेटिकल सवाल है। आपने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया की बात की कि दिल्ली से हटा के और जगह की जाए। मेरा मानना है कि मीडिया सरवाइव दिल्ली से ही करेगा। ओपिनियन आपका अलग हो सकता है। जिस तरीके से स्कॉच दुनिया में कहीं भी बन जाए, स्विट्जरलैंड के मुताबिक वैसा स्कॉच नहीं बन सकता है। न्यूज का जो सेंस है वो दिल्ली में ही रहेगा, मेरा मानना है। मैंने तारी भी नहीं पी है, इसलिए मुझे स्कॉच के बारे में नहीं मालूम कैसा होता है। लेकिन स्कॉच जो स्विट्जरलैंड का है वो इंडिया में चाहे कैसे भी बना ले, अब नहीं बन सकता है। उसी तरीके से जर्नलिज्म और मीडिया दिल्ली में ही रह के सर्वाइव कर सकता है। He means Scotland. हाँ, स्कॉटलैंड। आप शायद चॉकलेट्स के बारे में बोल रहे हैं, मगर अनिल जी, ये आपका व्यू है, ये मेरा व्यू है। मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली से आप हटा दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली में फोकस मत करिए। सारी देश की मीडिया नोएडा से ऑपरेट नहीं कर सकते। मैं नोएडा में बैठ के आपको कह रहा हूँ, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपको मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको भी पता है अनिल जी कि मैंने इधर 10 साल रिपोर्टिंग की है, धक्के खाए मैंने भी इधर। मगर मुझे जो लगा कि मुंबई में बैठ के मुझे एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ा मिला,
क्योंकि जब जिस पर आप रिपोर्ट करें उनसे नहीं मिलते हैं ना, आप अगर किसी को सिर्फ इंटरव्यू के लिए मिलते हैं और डेली बातचीत के लिए नहीं मिलते हैं, तब आपकी रिपोर्टिंग ज्यादा इंडिपेंडेंट होती है। सुरेश कलमाडी के खिलाफ सारी मीडिया सॉफ्ट क्यों हो गई थी? क्योंकि सुरेश कलमाडी को सोशली सब लोग जानते थे। आप जिनके घर में जाके डिनर खाएंगे, जिनके साथ आप स्कॉच पिएंगे, उन पर आप स्कैम एक्सपोज नहीं कर सकते। तो एक जो डिस्टेंस बनता है रिपोर्टर और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के बीच में, मुझे लगता है और बढ़ना चाहिए। ये भी हो सकता है अनिल जी कि आप दिल्ली में बैठते हुए आप दिल्ली में बेस्ड हो, मगर साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आप बनाए रखें। अगर आप साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना सकते हैं अपने जिस पर रिपोर्ट करें तो अच्छी बात है। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, दिल्ली में हमारी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स पे फोकस्ड रहती है। आप सोचिए, इंडिया में जितने पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में रिपोर्टिंग होती है टीवी चैनल्स पर, बाकी देशों में नहीं होता है। ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में, भारत में हर 4-5 महीने एक स्टेट इलेक्शन होता है। मगर हमारी थिंकिंग थोड़ी और, इट शुड बी लेस पॉलिटिकली इन्वॉल्व। जो जर्नलिस्ट, जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स, जो प्रोड्यूसर्स, जो इनपुट डेस्क, आउटपुट डेस्क हर वक्त सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के पास मंडराते रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं अनिल जी। उनको आप कोशिश कीजिए, मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको इधर बीएजी से ले जा रहा हूँ, मगर मैं आपको ऑफर करता हूँ, आप मेरे साथ 6 महीने मुंबई में रहिए, आप मेरे डेस्क में काम कीजिए, मैं फिर आप, अनुराधा डोंट माइंड, बट आप देखेंगे आपकी थिंकिंग, यू विल फील अ लिटिल मोर फ्री, because you will not meet the same people every day, and you will realize that there is a world outside of this also. Am I making sense to you, Anil? It's just what I felt. Last year, I'll just end this with for 2 weeks I had to anchor out of Bangalore. My father was not well. He was admitted in a hospital in Bangalore. और मैं MG रोड में हमारे ऑफिस से एंकर करता था। हर दिन मैं वापस आता था, शो के बाद 100-200 लोग बाहर खड़े रहते थे। वो मुझे सिर्फ पूछते थे, इज देयर नो अदर पार्टी देन अरविंद केजरीवाल? Then I feel that in the streets of Bangalore that we have over centralized it. So when I'm talking about de-Lutyinizing media, I'm not saying take it physically out, but psychologically I think little bit of distance should be built between Noida and Delhi. That's what I feel. I'm not saying that everybody in Delhi is bad. Please don't misunderstand me, huh? Manak, if you just give me a minute, please. I really have a question. Where? Over here. Sorry, at the back. Where? Can you hold on 1 second? Satish ji is ready. Just give me 1 second. Okay, okay. Hello, Satish ji, how are you, sir? फाइन फाइन थैंक यू। और ना आपने एक बात कही कि जर्नलिज्म में जो है ओपिनियन की ही आवश्यकता है, ओपिनियन की ही आवश्यकता है, और वही जर्नलिज्म है। तथ्य 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 तो सबके पास मत के तथ्य है। क्या ऐसा ये कैसे संभव है कि कोई भी आप ओपिनियन दे दें बिना तथ्य के, या फिर तथ्य से परे ही आप ओपिनियन को मानते हैं? ये मेरा सवाल है। और इसी से जुड़ा जो ज़्यादा अहम सवाल है कि जैसे अभी के उत्तर प्रदेश के चुनावों में कब्रिस्तान और शमशान शब्द का जुमला इस्तेमाल किया गया, कितना उसमें तथ्य है ये मुझे मालूम नहीं है, या तथ्य पता करने की कोशिश की गई नहीं, लेकिन उसके ऊपर कई तरह के ओपिनियन जरूर आ गए। तो आप अगर उस समय रहते तो आपका क्या ओपिनियन होता? मैं सवाल उठाता, मैं ज़रूर सवाल उठाता। इनफैक्ट मैं आपको सतीश जी ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, मुझे लगा, मैं थोड़ा सा टीवी देखा, आजकल बहुत बिजी हूँ, मगर 20-25 मिनट टीवी देखा मैंने, मुझे लगा कि और थोड़े और सवाल उठाने चाहिए थे उस दिन भी। उस दिन मैंने हैशटैग देखा, योगी का नाथ आदित्यनाथ, अंग्रेजी चैनल में चल रहा था, तो मुझे लगा कि दिस इज नॉट राइट। वी डोंट नीड टू फाइट बैटल्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, सतीश जी। Politicians will fight their own battles. Why are TV channels fighting battles on behalf of political parties, right? Second thing which I want to tell you, Satish ji, so you understand this, and you're my senior and I'm telling you, don't misunderstand. Every story that I do is well researched. Satish ji, I go through my papers, I do research, I have a research and analysis team which does a lot of research, and I go through my facts and I double check with my reporters. मैं जितने स्टोरीज ड्रॉप कराता हूँ ना सतीश जी, कोई एडिटर ड्रॉप नहीं कराता। कोई अगर ये फैक्ट नहीं है, मैं कहता हूँ स्टोरी नहीं जाएगी, फिर से करो।
कई रिपोर्टर्स ने रिजाइन कर दिया है सतीश जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे टू गेट अ स्टोरी थ्रू मी इज वेरी डिफिकल्ट. So I really go after the facts in great detail with a microscope, and I don't want journalists to misunderstand that. Facts are important, but opinion is sacred. Facts are available today, opinion is sacred. What we are missing today is investigative journalism, exclusive stories, deep investigations. इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये जर्नलिज्म ज़्यादा हो रही है आजकल. जो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज है वो नहीं हो रहे हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यंग जर्नलिस्ट को कहना कि वो जो रिपोर्टिंग होती है जहाँ पे आप डीपली जाते हैं, कुछ एक नई अनकवर्ड चीज़ उनको निकालते हैं, उसको करने की ज़रूरत ज़्यादा है. तो डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई हैव नॉट गिवन अप ऑन फैक्ट्स. ऑल आई एम सेइंग टुडे इज दैट ओपिनियन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव वेरी गुड फैक्ट्स then you should have very strong opinion as well. That is a very good mix. That's what I mean, Satish. Arnab, I have a question. Yes, sir. Welcome to the Entrepreneurs Club. Okay? अभी तक आप दूसरों के लिए काम करते रहे. Now you are starting on your own. So we wish you all the success. Thank you. But आप ये सोच सकते हैं कि एक entrepreneur होने का प्रेशर बहुत कुछ ज़्यादा होता है. जब आपको एक बड़ा सा जहाज चलाना पड़ता है, जब आपको एक जहाज चलाना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि कभी भी उस जहाज को चलाने के लिए आपको किसी भी तरीके का एट अ वेरी स्मॉल लेवल कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? अनुराधा जी, आई टेल यू वन थिंग. मैं किसी के लिए पहले भी काम नहीं करता था, ये मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ. मैं किसी कॉर्पोरेट मीडिया ग्रुप के लिए काम नहीं करता था और नहीं करता था. अगर मैं करता था, अगर आप कहेंगे कि आप किसी और के लिए काम करते थे, तो आप ये भी देख लीजिए अनुराधा जी कि उनकी पॉलिसी अमन की आशा को लेके क्या थी और मेरी पॉलिसी क्या थी. मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ, और मैं उन लोगों के लिए काम ज़रूर नहीं करता हूँ. मैं अपने जर्नलिज्म के लिए काम करता हूँ. हाँ ठीक है, मैं 11 साल मैंने वहाँ रहा, मगर मैंने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, उसके लिए काफ़ी काम की मैंने, ग्राउंड अप मैंने उसको बनाया. तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये ऐसी है कि आप अगर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नलिज्म करेंगे, आपको अगर लोग देखेंगे और आपकी व्यूअरशिप काफ़ी हाई होगी, तो आपको विदाउट कॉम्प्रोमाइज आपको एडवर्टाइजिंग मिलेगी फ्रॉम द प्रिंट सेक्टर. दैट एडवर्टाइजिंग शुड बी इनफ टू मैच योर एक्सपेंसेस. You should not aim to earn more money by using media. And since we are talking very freely, Anuradha ji, I want to give you one example. आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने 75 फुट लॉन्ग एक केक काटी थी. आपको याद है? 75 फुट लॉन्ग केक थी उनकी. हमने काफ़ी सवाल उठाए थे. उसके बाद 2 दिन हमने सवाल पूछे थे. आजम खान ने कुछ कहा, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई. That weekend हमारे सेल्स और मार्केटिंग टीम ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उनको अर्जेंटली एक ऐड लगानी है, और उन्होंने कहा कि हमें ये ऐड 1 लाख रुपए हर 10 सेकंड के रेट में मिल रही है. यानी कि हर सेकंड के लिए कोई था जो 1 लाख रुपए देता था ऐड के लिए. आपको पता है, आप टेलीविजन में कोई ऐसे रेट्स नहीं देते, IPL के रेट्स हैं. तो मैंने सवाल पूछा कि ये एड्स किसके हैं और क्या एड्स हैं. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये एड्स मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के हैं. मैंने बोला एड्स में क्या है? बोला एड्स में वही फोटोज हैं, 75 फुट लॉन्ग केक, और उसमें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सारे जितने फॉलोअर्स हैं वो नेताजी को बधाई देना चाहते हैं अपने बर्थडे में. मैंने अपने सेल्स और मार्केटिंग टीम को उसी दिन कहा था, अगर ये एड चलेगी तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा. आप चेक कर लीजिए. एड नहीं चली, मगर एक मैसेज मैंने छोड़ दी थी कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज से डोनेशंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं लूंगा. और मैं ये कह रहा हूं आपको अनुराधा जी कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डोनेशन लेके मैं अपने मीडिया चैनल को चलाना नहीं चाहता. मैं ये विश्वास रखता हूं कि भारत के जो लोग हैं वो देखेंगे मेरे को, मेरे जर्नलिज्म को देखेंगे. मेरी कोई जो है व्यक्तिगत कोई एस्पिरेशंस नहीं है फाइनेंशियली. इसलिए मैं इस चैनल को, जो रिपब्लिक चैनल, इज मोर अ पीपल्स चैनल, एंड आई फील दैट आई विल बी कॉन्फिडेंट इन डूइंग इट. इवन इन माई प्रीवियस सेटअप आई हैव डन थिंग्स दिस वे.
I have not compromised. The day I have to compromise, Anuradha ji, I will leave journalism. But I will not compromise for anything because I have no reason to compromise. All the best. अब बहुत सारे सवाल हैं अर्नब, ये मैं देख रहा हूँ लगातार वहां से हाथ उठते जा रहे हैं। एक सेकंड, वन सेकंड, आई एम कमिंग टू यू, वन सेकंड। अर्नब, जो आपने ब्रेक लिया, आप नए चैनल के लिए काम तो कर ही रहे थे, लेकिन बीच बीच में आप छोटे छोटे इंटरव्यूज भी दे रहे थे, कभी रेडियो को, कभी किसी वेबसाइट को। बीच में हमने आपकी एक अलग साइड देखी, जहां आप अपने बारे में बात कर रहे थे, अपनी हॉबीज के बारे में बात कर रहे थे। पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी? लोग जानना चाहते हैं कि जो स्क्रीन पर नेशन फर्स्ट बोलता है और देश को तोड़ने वालों के छक्के छुड़ाता है, वो घर जाके कैसा आदमी है? वो पिक्चर देखता है, वो न्यूज चैनल देखता है, वो अखबार कितनी देर अखबार पढ़ता है, क्या गाने भी गाता है बाथरूम में? सब करता हूँ, हर तरह के गाने सुनता हूँ, हिंदी म्यूजिक, मैं बॉलीवुड ऑब्सेस्ड हूँ। पहले मैं हर हफ्ते की रिलीज फ्राइडेज को देखता था। अंग्रेजी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट है, कई सारे मेरे फेवरेट स्टार्स हैं। मैं इरफान का भक्त हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत के सबसे प्रतिभाशाली एक्टर हैं, बहुत मानता हूँ उनको मैं, मेरे दोस्त हैं वो। कई सारे दोस्त हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, वो भी उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे भी तर्क होती है कभी कभी। आई एम क्वाइट रिलैक्स्ड। आप कभी मुंबई में आएंगे तो लोअर परेल में देखेंगे मैं पैदल चलते रहता हूँ। कोई वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं है, झूठ स्टोरीज लगाते हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वगैरह। स्ट्रीट फूड खाते हैं कभी ऐसे जाते हैं तो? स्ट्रीट फूड खाते हैं? स्ट्रीट फूड खाता हूँ, घूमते रहता हूँ। मॉब नहीं करते हैं लोग आपको? हाँ, मॉब नहीं करते हैं लोग नहीं, आपको? कोई मॉब नहीं करता है। मुंबई जो शहर है ना, बहुत कूल शहर है। कोई किसी के बारे में कोई केयर नहीं करता है, कोई किसी को बॉदर नहीं करता। अच्छा लगता है मुझे। आई रियली एंजॉय बीइंग इन मुंबई। दिल्ली भी अच्छी लगती है, मुंबई को मैं बहुत पसंद करता हूँ। लोअर परेल में रहता हूँ, एक अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता हूँ। कोई बड़ी कोठी नहीं है मेरी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है मेरी, मगर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। हर दिन मैं जब जाके 20-21 साल के लोगों के साथ काम करता हूँ। और मानक, आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे जो मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे चैनल के, वो 29 ईयर्स के हैं। 29 ईयर्स इज़ माई मेन एडिटर इन माई चैनल। तो मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि वो युवक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और अगले 15-20 साल में मैं ऐसे अगर 100-200 लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकूँ तो माई लाइफ इज़ कंप्लीट। आई एम वेरी रिलैक्सड, आई एन्जॉय म्यूजिक, आई हैव नो हॉबीज़, आई जस्ट डू न्यूज़ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। सुबह से लेके फ़ोन कॉल शुरू कर देता हूँ। बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले मैं 7:30 बजे उठ के सबको उठाता था अपने ऑफिस में कि आज मेरे गेस्ट क्या है, आज स्टोरीज़ क्या है, और वो सब नहीं हो रहा है आजकल। बट आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। आई एन्जॉय लाइफ, आई एम वेरी रिलैक्सड। आप में एंकरिंग के अलावा कोई और टैलेंट भी है जो आपने डिस्कवर किया हो इन 4-5 महीनों में? कोई टैलेंट नहीं। कोई तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई टैलेंट नहीं है। आप मुझे अगर गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं कोई टैलेंट ही नहीं है, सीरियसली कोई टैलेंट नहीं है। मैं सिर्फ न्यूज़ कर सकता हूँ और अभी वही कर रहा हूँ ना। आप मुझे एंकरिंग का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने आज अभी एंजॉय किया अपने आप को। बट आई जस्ट लव टीवी, आई जस्ट लव टेलीविजन। एंड मैं ऑफिस में जाके मैं प्रोमोज देखते रहता हूँ। मैं प्रोमो रूम में बैठ के मैं करीब 2 घंटे बैठ के पुराने प्रोमोज और शॉर्ट्स देखते रहता हूँ। आई लव द ऑडियो विजुअल मीडियम। और कोई हॉबीज नहीं। तो फिल्में जब देखते हैं तो क्या चूज करके देखते हैं? कौन किस तरह की फिल्म? सब देख लेते हैं? सब तरह की फिल्में, एनी फिल्म, एनीथिंग। अभी अच्छा, वो क्या था अभी लेटेस्ट, वो जो देखा मैंने, किसकी शादी क्या, बद्रीनाथ की दुल्हन। बद्रीनाथ शादी। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, अच्छी फिल्म। अच्छा, इरफान का नाम तो ले दिया, बड़ा आसान है बोलना। एक्ट्रेसेस में भी कोई है? सब अच्छे हैं। अभी मुझे देखिए Don't ask me politically incorrect questions. I like everyone. हाँ, पहलाज निलानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, संस्कारी। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि लोग, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। तो मुझे कभी कभी लगता है पहलाज निलानी मेरे स्टूडियो में आए क्यों, वो बैठे क्यों मेरे साथ 2 घंटे। उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं इंटरव्यू कराना चाहता हूं। तो मैंने उनको पूछा कि पहलाज जी आप सोच लीजिए। मैं उनको डिसवेट करने की कोशिश कर रहा था, वो खुद आए, खुद इंटरव्यू दी उन्होंने। क्यों ऐसा होता है कि लोगों को पता है कि बैशिंग होनी है, उसके बाद भी आपके शो पे आके बैठ जाते हैं? मैं बैशिंग किसी की नहीं करता मानक, मैंने राहुल गांधी की भी बैशिंग नहीं की। ये बताए, आप देखिए, इतना सॉफ्ट स्पोकन इंटरव्यू आपने आज तक देखा है?
तो लोगों ने मुझे पूछा उसके बाद इंटरव्यू कैसी थी, आपको कैसा लगा? मैंने बोला बहुत अच्छी इंटरव्यू थी मेरे लिए. सो आई डोंट नहीं, उससे ज्यादा तो आपके मोदी वाले इंटरव्यू की बात होती है. जी बिल्कुल. मेरी मोदी वाली इंटरव्यू में मैंने सब सवाल पूछे. अब लोगों को प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूँ. लोगों ने बोला कि आपने उनको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा? That was one of the comments which was made. I said he's the Prime Minister of India. What should I call him? I am showing the respect to the office of the Prime Minister of India. Narendra Modi is the Prime Minister of India and I am calling him Mr. Prime Minister. अब अगर कई लोगों को कोई लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो I can't do anything about it. I've asked him all the questions. Whether it is Subramaniam Swamy, Narendra Modi or Rahul Gandhi, I asked my questions to everyone. मैं ये पर्सनल सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये जो सारे बडिंग जर्नलिस्ट हैं इनको ये पता लगना चाहिए कि सिर्फ टीवी स्टूडियोज या न्यूज रूम या माइक लेके हाथ में फील्ड में निकल जाना सिर्फ इतना नहीं होता है. जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है और वो सब करना चाहिए, वरना आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे. आप रिलीजियस हैं अर्नब? रिलीजियस? Yes, I'm religious. I'm spiritual. स्पिरिचुअल रिलीजियस? Spiritual and religious. Yes. I go to the church. I've gone to the mosque. I've been to all places of worship. I go to temples. अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा which one, but आप politically inclined हैं अंदर नहीं, से? मैं politically inclined नहीं. अंदर से बताइए. नहीं, अंदर से बाहर से मैं inclined नहीं हूँ भाई. आप पर अगर वोट डालना पड़ेगा तो वोट तो डालेंगे. हाँ वोट डालता हूँ. हाँ हाँ, बस ठीक है, उतना ही काफी है. और कोई सवाल? गाना नहीं गाएंगे ना मतलब आप? ओके लेकिन नहीं गाना मैं नहीं गाऊंगा. आप क्यों कर रहे हैं सब ऐसे? Sir. Embarrassed कर रहे Right, now over here. Okay, Manik. अच्छा, एक सेकंड. हैं. Okay, now you're asking me questions. चलिए. Okay, so thank you so much, and it's truly an honor to speak to you today. Thank My you. question is regarding your, you've been actively campaigning about the Republic nationally and internationally. And while you were speaking under 25th Youth in Bangalore, you mentioned that you and I are together in this and we will save Indian journalism and will take it away from the Lutyens Delhi. We'll take it to Pune, Guwahati, Bangalore, Mumbai. Okay, Arnab, I have been following your campaign. Maybe I'm not aware of, but none of your campaigns, you name it, in 6 months. Now, don't talk about the times now. We are ahead of it. And you're the person who says you're going to disturb the digital media, digital era and everything. But again, you never spoke anything about the youth in the states like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Haryana, and why so? Do you think... one second. No, wait. I yet to complete. You're not making sense. You're not clear. No, आप I'm एक clear. सवाल Just पूछो. hold Come on. to the point. No, just hold on, because these things, because he's very good in defending things. I have to put point before you say anything. Come on, let me complete. Hold on. So, and... Yeah, carry on. Okay, you already disrupted me in my question. Okay. So, as I was saying, and again I want to say about the Uttar Pradesh, knowing as one of the youngest youth population you can find over there, and also contribute in the India's 3rd largest economy. Why you never promote the youth from these states? Why don't you take the channels? Why don't you take the editors? Why don't you come to the colleges? Like, okay, you over here. Okay, now I get it. मैं समझ गया. अब मैं थोड़ी सी आसान भाषा में कह दूं जो आपने कहा. No. ये दरअसल उन सारे. No, he got it. I'm sure he got it. Okay. No, I didn't get your name. What's your name? Shruti. Shruti, I have only been going to campuses, honestly. And I'm the oldest person to go to the under 25 summit. Do you know only people under 25 are allowed to speak at that summit in Bangalore? I started the campaign for Republic at the under 25 summit, and I'll tell you why. I have no money. Unlike what you read in papers, I'm starting this channel on one big thing which is called faith and journalism. Okay? I don't have the money to do big marketing campaigns. So I decided I need to speak to people directly about Republic. I started my campaign at the under 25 summit, where I launched the channel at the under 25 summit. Why did I launch the channel at the under 25 summit? Because I truly believe that you are the future. I need to communicate to you. Now I am one person. I'm also trying to launch a channel, bring my equipment, hire people, do stuff. So I have not been all over the country, but I have spoken at 27 campuses in the course of the last 3 months. This is probably the 28th campus where I am coming. And I will try to go across more and more, and I can assure you that the journalism that we do will reach out to the youth. Okay, again, as you said, you're reaching out to the youth. I just Are you want doing to a ask frankly you. एक सेकंड. Listen, You're बहुत doing a सारे. frankly speaking interview. I just want to ask. Listen, बहुत सारे लोग हैं और भी औरों को मौका भी दीजिए. आपका सवाल हो गया. सवाल बेसिकली ये था, आप यूपी में और बाकी जगह क्यों नहीं जाते हैं? वो बोल रहे हैं कहीं से इनविटेशन आएगा तो जाए. प्लीज माइक दे दीजिए. एक सबको एक मौका मिलना चाहिए. Hello, sir. इधर से यहाँ से क्वेश्चन. Sir,
सर मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी अभी मीडिया की पढ़ाई शुरू की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमें आप जैसे जर्नलिस्ट को आदर्श मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अगर मानना चाहिए तो क्यों मानना चाहिए, और नहीं मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए? और अगर नहीं मानना चाहिए तो फिर किसे माने हम? आपका 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 सवाल खत्म हो गया या नहीं हो गया? जो मुझे लगता है कि आपको किसी को आदर्श मानने की जरूरत नहीं। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने आज तक, मुझे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आप किसको आदर्श मानते हैं जर्नलिज्म में, और मैं कहता हूँ मैं किसी को आदर्श नहीं मानता। मैं सिर्फ अपने जर्नलिज्म को आदर्श मानता हूँ। कई अच्छे लोग हैं, जो लोग ऑनेस्ट हैं, उनको आप जरूर रिस्पेक्ट कीजिए। मैं विनोद मेहता जो है आउटलुक के एडिटर थे, उनसे मैं हर बात पर उनसे डिसएग्री करता था, मगर उनको मैं रेस्पेक्ट करता था क्योंकि वो ऑनेस्ट थे, वो सच थे। आपको किसी की मतलब जो है, किसी को आप आइकॉन मान के चले, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने क्या कहते हैं, कॉन्शियंस को क्या कहते हैं हिंदी में, अपने अपने ज़मीर को आदर्श मानिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। और दूसरी बात यह है, आप जर्नलिज्म में आए हैं, कॉन्शियस इज अंतरात्मा, कॉन्शियस अंतरात्मा। चलिए आप अपने अंतरात्मा को पूछिए। आप सिर्फ यू बी रेडी टू वर्क हार्ड, डोंट गो टू जर्नलिज्म फॉर ग्लैमर। दिस इज समथिंग आई सेड टू अनुराधा जी लास्ट टाइम। ऑल ऑफ अस, यू नो, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। दूसरी बात है, आप कैमरा के सामने होने की सिर्फ वो क्या कहते हैं, एस्पिरेशन, आकांक्षा इज राइट वर्ड? क्या बात है, ठीक है। माय हिंदी इज इंप्रूविंग। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे कैमरा के सामने आना है, कैमरा के पीछे भी बहुत होता है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए जब आप वो समझे। तीसरी बात, यू बी रेडी टू वर्क हार्ड, गो ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्ट्रगल फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years। और मैं जनरल एडवाइस दे रहा हूँ जर्नलिज्म के जो आ रहे हैं, आप सैलरी को लेके आप अपने करियर को डिटर्मिन मत कीजिए पहले 5 साल। मैं सिर्फ 5 साल मांग रहा हूँ आपसे। आप पहले 5 साल सिर्फ अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचिए, ये नहीं कि मुझे इधर 2000, 5000, 10,000 रुपए ज्यादा मिलेगा। Am I clear with you? Struggle for 5 years. This is all the advice I can give you. Thank you. Hello, sir. Okay. Yeah, hello, sir. My name is Nupur. So, ever since I decided to be a journalist, I have been looking up to you in many ways. And in that process, I have followed your speeches at various forums. Yes. And once you said something that stuck into my head, which you mentioned right here. You said to the journalism students, always remember, facts are sacred, but opinion is supreme. You said this. Now my question is, has it been your entire professional experience that has brought you to this conclusion or a belief, or has it been a principle that you've believed since the beginning of your career? You need to amplify stories. Okay. When you get a good story, I don't get a good night's sleep if I think that my story will be forgotten tomorrow. A good story must lead to something. A good story must become a campaign, and a good story must have an end result. Right? There is no point in breaking big stories if nothing comes out of it. And I will give you one basic example, okay? One day will come in life when you have power in your hands as a journalist. Where will you use it? In 1996, I had a news editor called Appan Menon. I used to really love him. We all know Appan Menon. He used to work with Pranay. I love him. Wonderful man. He told me that outside a school in Delhi, a child has fallen into a borewell, open manhole. If you've seen my speeches, you may have heard me talk about it. I fought with Appan and I said, Appan, I will not do this story. आधा घंटा में बहस हुई। अपन ने बोला क्यों नहीं? मैंने बोला मुझे कांग्रेस करना है, बीजेपी करना है, फॉरेन पॉलिसी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करनी है। ये बहुत छोटी स्टोरी है। तो अपन ने मुझे बोला था एक दिन आपको याद आएगा, यू विल रियलाइज दैट दिस इज अ बिगर स्टोरी देन द वंस यू मेंशन। Then I launched channel called Times Now. The channel was a complete failure. And that's when the story of Prince happened. When Prince fell into a borewell for 3 days and 3 nights, we did nothing else but the story of Prince. Now my question to you is, had I not amplified the story of Prince, Prince would not have been saved, right? So sometimes you need to have the facts at your disposal, but you really need to push your opinion. The choice is, what story do you pick up? On which story do you express your opinion? You can't express your opinion on every story. But every day in India, there are 1 or 2 stories
on which if we speak up our mind, there will be a domino effect on the rest of society. My responsibility as a journalist is to raise the bar of opinion on those stories, not on all stories. Then you actually make a difference. Then incidents like Haji Ali happen, Sabrimala happen. That's when you impact people and you impact people's lives. Am I making sense to you? So opinion is required in some stories, not all. Even in 10% of stories. But it has a long-term impact on our society, on our country. Right? That's why we pick up these stories occasionally. Hello, sir. Hello, sir. एक सेकंड रुक जाइए, एक My सेकंड, name- 1 second. Hello, sir. Hi. So it's an honor to meet you. Seriously, sir. So Same I'm feeling honored. Seriously, it's so much rule worthy that you're in front of me. Oh, So my fantastic. question is that since I've joined ISOMS and I'm learning all the things here, so I'm always getting into it like we need to be impartial as a journalist. And so today's media, what we see is not at all impartial as what we see. So sir, what's your opinion about this? How can we become impartial when our examples are not that much clear? Huh? Thank you. Yes, sir. I didn't get your name. Iram. Iram. Okay, so Iram, I'll tell you my view, you don't need to agree with it. You don't always need to be neutral. Don't always need to be neutral. Because we are journalists, we are not a Wikipedia. We are not a collection of facts. Okay? Sometimes people say they are neutral because they don't want to take a stand on the side of what is right and what is wrong. Sometimes things in life are black and white. You don't need to be neutral on those occasions. Then you need to come out and take a stand. And when you take a stand, first ask yourself, as he said, apne zamir ko puchiye, that am I truly saying this out of the force of my conviction? Believe me, TV, at least I can say this about TV, it's such a transparent medium. People will understand whether you're being honest or dishonest about it. You can't pretend or act in front of TV. I don't believe in neutrality that kills the truth. In the pursuit of the truth, if you have to sacrifice neutrality, so be it. In the pursuit of the truth is more important than just neutrality. Okay? Thank you. एक सेकंड, 1 second, एक सेकंड. संजीव त्रिवेदी. My question is more about your style than your opinion. And that is that one very important, remarkable characteristic about your anchoring is the way you suddenly raise your voice. And then it goes to the fabulous pitch. Now, and it has impressed people so much so that last time we had a political guest over here and he actually mimicked you right in front of us. What is the name of the political guest? I won't name him. Well, and in fact, you have inspired a whole generation of anchors, and each evening we see them shouting out at each other, and I'm sure you must be amused seeing at them. My question, my curiosity is, when did you realize, because when you started, you were considerably more gentle ones while anchoring. I remember you fair enough is the word that you actually were known with. Now you, nation wants to know is the word that you actually can. So when did you realize that, I have to raise my voice? When did you realize that this should be done to shout out at the people and silence them? Or is it to be heard? Because you have a lapel mic, you have a camera focusing on you, and you still need to shout out. Why? Okay, first, during 26/11, there was nobody available to anchor because we are a small channel and all the other journalists had gone to the field. I anchored for 4 days during 26/11. 4 days. It was about 93 hours of anchoring that I did. 93 to 100 hours of anchoring. After those 4 days, when Major Sandeep Unnikrishnan's body was being cremated, my entire newsroom was crying. It was an emotionally wrenching experience for us. Sometimes we are journalists also. After that, I remember the first time I raised my voice was when our channel was taken off air on the second day. I picked up the phone and spoke to the INB minister in Delhi. And you can ask the minister, I told him if my channel is not on in half an hour, sir, I'm giving you half an hour. I instructed him, put the channel on in half an hour. If it's not on in half an hour, I will go on every social media and declare that you're trying to black me out. The channel was back in half an hour. I began to realize when you speak up, when you raise your voice, people listen to you. And one more thing I want to share with you. After 26/11, on 2 days after that, there was a big
thousands of people had gathered outside Gateway of India. And I got a call from the same minister who called me and he said, आप ये coverage बंद कर दीजिए. I said, क्या बंद करें? ये सो आप जो लोगों को दिखाने हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हुए हैं, सारे सब चैनल्स को बोल दिया बंद करने के लिए, सब ने बंद कर दिया, आप बंद नहीं कर रहे. मैंने बोला इसमें आपको परेशानी क्या है? तो ही सेड कि आप जनरल्स को दिखाइए, पॉलिटिशियंस को दिखाइए, डिप्लोमैट्स को दिखाइए, ब्यूरोक्रेट्स को दिखाइए, आप ये आम जनता को क्यों दिखा रहे हैं? ये आम जनता तो अनाप शनाप बोल रही है पॉलिटिक्स के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में. I realized then that the politicians get scared when the common man begins to speak on TV. When the common man speaks on TV, they get scared. When I am talking about de-Latinizing media, I am saying I'll take the power center of India away from Delhi and I will take it outside Delhi. I want to bring back that sense of fear. From 2008 onwards, I realized that unless you raise your voice, nobody listens to you. I'm not raising my voice on my own side. I'm raising the voice on behalf of the people. You will not pick up one issue on which I have gained anything personally by raising my voice. But I did do some campaigns which today, when I'm going out among people and I'm talking about Republic, why do all these people know me and the work I have done? It's only because they believe that I raised my voice for people. So it was around 2611 that I made that change. Uske pehle, you are right, I used to have a different style of anchoring. But one more thing I want to tell you, I'm not the only anchor. There are anchors like Manak, he's terrific. There is Anuradha ji, they're terrific. They have their own style. I have my own style. And I truly believe that different styles can coexist today. Everybody doesn't need to shout. I just want us to come together to raise the issues in a collaborative way. And actually, you all know that I am trying to collaborate with all TV channels to work together to raise issues. I want to build a group of channels that work together to raise issues together. And I would like News 24 also to be part of it in the future. हेलो सर सर जब हम अर्नव सर को बरखा मैम को जस्ट यार सर हियर एक सेकंड सर जब हम अर्नव सर को बरखा मैम को या राजदीप सर को किसी कन्वोकेशन में सुनते हैं, उसके बाद जब हम न्यूज़ रूम में जाते हैं तो ये थॉट इतनी जल्दी बदल क्यों जाते हैं? क्या एक चैनल की पॉलिसी होती है? और इसके बाद साथ एज ए जर्नलिस्ट स्टूडेंट सर उस हैरानी तो उस वक्त होती है जब एक हेयर सैलून वाला भी गिनता है कि कौन सी चैनल कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है. तो ये चीज़ें कब बदलेगी? देखिए मैं जो जैसे टीवी में बोलता हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है. अब बाकी जो मेरे सीनियर्स हैं जिनके नाम बारे में आपने नाम ली, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा. कन्वोकेशन में अलग थॉट्स होते हैं. नहीं, लेकिन आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि ये लोग टीवी पे कुछ बोलते हैं, न्यूज रूम में कुछ बोलते हैं? सर कन्वोकेशन जैसे आज यहाँ पे हैं हम, जैसे न्यूज रूम में आपने इनको देखा है न्यूज रूम में बोलते हुए? सर न्यूज रूम जब ये ऑन एयर आते हैं तो ऑन एयर जो बोलते हैं वही बोल रहे हैं, बाहर भी वही बोल रहे हैं. आपको ऐसा क्यों लगता है कि डबल फेस है? ये आप प्री कंसीव नोशन लेके आए? नहीं सर ऐसा नहीं. मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मगर मैं इतनी हिंदी टीवी पे नहीं बोलता हूँ. अभी मैं क्या करूँगा कि मैं जाके हिंदी बोलना शुरू कर दूंगा जैसी हिंदी चले. मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो मैंने इधर कहा है. आई हैव नॉट चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एनी ओकेजन. मैं 2 साल पहले भी आया था इधर आइसोम्स में और मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करता हूँ. वो बेसिकली अब ये हेयर सैलून वाले क्या बोलते हैं मुझे पता है. मैं वैसे बहुत दिनों से हेयर सैलून नहीं गया हूँ. मुझे लगता है आप भी नहीं गए हैं. आप एक काम कीजिए, आप और मैं एक साथ, जरूरी है आप और मैं दोनों एक साथ हेयर सैलून जाते हैं, फिर पूछते थे. सर अच्छा बेटा हो गया इधर एक्सक्यूज मी सर. हो गया बेटा. सर हम हेयर सैलून जाएंगे. ओके अरब सर. सर मेरा नाम प्रज्वल थापा है. पहले तो जितने भी यहाँ पे बोर्डिंग जर्नलिस्ट है, आप उनके इंस्पिरेशन हो. आपने जैसा कहा था कि पिछले 4-5 महीनों में आपने कैमरे को बहुत मिस किया, टेलीविजन को बहुत मिस किया, वैसे ही हम लोगों ने भी आपको मिस किया. वो अर्नब गोस्वामी जो बोलता था कि द नेशन वांट्स टू नो व्हाई आर यू साइलेंट, उस अर्नब गोस्वामी को हमने मिस किया. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और कितना टाइम लगेगा कि हमें वो अर्नब गोस्वामी फिर से वापस मिलेगा, और कितना टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा? अरे अभी तो बताया था, फिर से आप पूछ रहे हो दोबारा? अभी तो 2 महीने से कम, 1 महीने से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं. मैं ओपनली आपको कह रहा हूँ. जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझे पूछ रहे हैं. आज एयरपोर्ट में आया तो लोगों ने रोक दिया मुझे, वहाँ पे बोला कि अभी जल्दी लॉन्च कीजिए. तो रिपब्लिक टीवी जल्दी लॉन्च होने वाली है और मैं चाहता हूँ आप सबको कहें और सबको ये भी कहें कि केबल ऑपरेटर्स को जाके बोलें
सारे केबल ऑपरेटर्स को भी बोले कि रिपब्लिक टीवी को स्विच ऑन करें। चलिए अब टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी दो लोग। नो हेलो सर, एक इधर। सर दिस इज कबीर फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड सर बताना चाहता हूँ कि हमारा यूथ आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर Thank you, है thank you. और क्योंकि हम लोग यहाँ चीज सीख रहे हैं तो आपसे कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हम लोग को मिलता है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल न्यूज चैनल्स में अक्सर हम देखते हैं कि चीजों को घुमा फिरा के बहुत दिखाया जाता है, तो चीजों को घुमाने फिराने की वजह अगर हम सीधे लोगों तक बात पहुंचा दे तो कैसा रहेगा? आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ठीक है अर्नब, दो तीन एक साथ ले लेते हैं, then we'll sum it up. एक यहाँ, हाँ जल्दी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज सर, हमने आपका नेशन वांट्स टू नो बहुत मिस किया है, तो सर आप एक बार फिर से वो एग्रेशन से बोलकर दिखाइए। What is your name? Nidhi. Riddhi, tell me, what does the nation want to know? You tell me, what does the nation want to know? The nation wants to know whether you will watch Republic. Will you watch Republic, Riddhi? That's it. Thank you. It will be back on air, but it's also going to be the Republic wants to know this time. अब देखिए मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। On TV you'll have to watch Republic now. Thank you. सर माय नेम इज ऋषभ एंड माय क्वेश्चन इज कि आपके इतने लंबे जर्नलिज्म करियर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या रही है? न्यूज आवर में क्वेश्चन पूछना या मानव गुप्ता के आंसर देना? अरे बाप रे, क्या बात है। ओके, मानक को कई सालों से मैं टीवी में देख रहा हूँ। He's a very good anchor. In fact, congratulate News 24 for having him. No, thank you. And I think he's done. Manak, I think you have been on air for almost 15-20 years now. something like that. Right? You were part of the team that brought in Star News at that time. Sir, I was you were with part of Z the for the- first Z team. Z team. Kandahar hijack in '99. Fantastic. That was my. So he has a long career. He looks very young, and I think he is young, and he's done a fantastic job. And I think the good thing you can learn about Manak is this: that he is a reporter and an anchor. आजकल जो लोग कहते हैं they only want to anchor. He's reported also on many occasions. I'm very proud of what you've done, Manak, and I wish you all the very best. I've enjoyed talking to Manak. जो कहते हैं I have a good vibe with him. What do you translate that as, Manak? What do you translate that? I have a good vibe with you. Good vibe? Yeah. What is that? How do you translate it in हिंदी Hindi? में उसे क्या बोलते हैं कि गुड वाइब? देखिए हम लोगों की सबकी हिंदी टीवी में इतनी ऐसी हो गई कि हम भी What is the Hindi? सतीश जी को पूछ। हाँ? तारतम्यता। दिल से दिल के तार मिले। दिल से दिल के तार मिलते हैं। चलिए ठीक है। Vibe is better. I have a good vibe with him. Anyway, this is the age of English. So nice of you. Thanks. Thanks for the Manak. compliment. No, I Means a truly lot. mean Means it. a I lot. truly mean it. I Thank truly you. mean it. Thank you. जल्दी क्विकली हेलो सर, माय नेम इज आदर्श। हेलो सर, ये देश 60% से अधिक युवाओं का है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि क्या आज भी जो जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा और अपॉर्चुनिटी का जो रिजर्वेशन है वो आज भी इस दशक में होना चाहिए? मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैंने एक्चुअली टीवी पर भी बोला है कि ये जो जाति और धर्म के बेसिस पर रिजर्वेशंस होते हैं इसका अंत होना चाहिए। इट वाज सपोज्ड टू स्टॉप मेनी इयर्स बैक। आई एम ऑल्सो फॉर रिजर्वेशंस, बट आई वांट रिजर्वेशंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट or religion or any community, but on the basis of economic opportunity. It should be on the basis of the the financial issues rather than caste-based issues. चलिए क्विकली गुड आफ्टरनून सर। सर माय नेम इज नन्नी झा। सर माय क्वेश्चन इज, आपने रशिया टुडे के एक सेमिनार में कहा था कि वी इंडियंस आर द मोस्ट इंसुलर पीपल. Approximately 92% of the Indians follow cross-border news. Yeah. But we, after having thousands of publication house and hundreds of 24/7 news channel, we don't have even a single cross-border news channel. So for budding journalists like us who aspire to work for their native country's cross-border news channel, we don't have that opportunity. Yes. We look forward to BBC, CNN, Al Jazeera. Yeah. So my question is, will Republic be that first break for us? Okay. सीधे बोलो ना, I want a job with you. Of course. No. Who does not? I'll tell you, Who she's does not? asking important question. See, रशिया टुडे की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे मैं था, CNN के हेड थे, अल जजीरा के हेड थे, BBC के हेड थे, And चाइना everyone TV के was हेड थे, shocked about- टेलीनॉर वो थे। 2 घंटे की सेमिनार हुई थी। 1 घंटे तक मैं चुप था। Yeah. 1 घंटे तक मैंने सुना उन्होंने क्या कहा, BBC, CNN ने। उसके बाद मैंने बोला, और मैंने वहाँ पे जो बोला था मैं चाहता हूँ आप जाके देखें।
I said that the hegemony of Western media must end. It must end. These people don't own global media. And I want to make an announcement today here at this institute. Republic World, which is my digital entity, my digital company, Republic World is going to be India's first player in global news. We are going to do global news for the world. How we do it, I don't know. But I am announcing here, and this year, we are going to take the first step. So we'll have Republic TV, which is for a national audience, and Republic World, which is for a global play in the digital media, audiovisual media and digital. You see, I see no reason why my perspective on Trump should not be taken seriously in America. So I am taking some steps by collaborating with global players to make that step. So Republic World is where you should really be looking at. Sir, I'm Kamal Agrawal. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस लास्ट टू जल्दी क्विकली 1 and 2 that's all. Sir, I am Kamal Agrawal from Galgotias University. Sir, like as we all know that you are opening your new channel Republic. Yes. Then you said that future is the opinion is the future of journalism. Sir, on the other hand, when media is giving the opinion, it is being said that media is being biased and imposing their views on the common people. Yes. So then what will be your take on your channel in this? I've always expressed my opinion freely, and I will continue to express my opinion. Hello, sir. वो There'll be no change on that. अर्नब बेसिकली आपसे सवाल पूछने का जो एक आनंद, हिंदी में आनंद बोलते हैं उसे, इंग्लिश में उसे प्लेजर बोलते हैं, वो लेना चाहते हैं. सारे आप सब जवाब दे चुके हैं, फिर भी वो आप बस रिपब्लिक पूछे जा रहे देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ. Hello, Just last. watch Republic, and you will find all the answers to all your questions today. Okay, but last. I want to tell you that this is a full-fledged press conference that is going on. So I think this is a dress rehearsal for their future profession that's going on. I'm enjoying it. Last. But I'm enjoying talking to all of you. I Sir, think you are all आपने- wonderful, wonderful people. सर, आपने जर्नलिज्म में करियर शुरू करा था तो आपको थोड़ा झुकना पड़ा था, आपको मंत्री के पास जाके माफी मांगनी पड़ी थी. जी. तो आपको रूम का रेंट देना था, लेकिन अभी भी हम जर्नलिज्म में करियर शुरू करेंगे तो क्या हमको भी उतना सॉफ्ट रहें, सच्चाई और ईमानदारी को हटा के क्या हम सॉफ्ट बने, बाद में हार्ड बनने की कोशिश करें जब हम किसी पद पर पहुंच जाएं? मतलब बेसिकली रूम का रेंट कैसे दें, यही पूछ रहे हो ना? सर, मतलब ये है कि हम लोग शुरुआत में झुकें क्योंकि हम लोग पोस्ट पे नहीं है अभी कोई. जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी, बहुत कम चैनल्स थे, 1 या 2 चैनल्स थे, अपॉर्चुनिटीज कम थी. आपकी अगर नौकरी चली जाती, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती. मगर आज जिस दुनिया में हम हैं, आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने इसलिए जो सवाल उन्होंने पूछा, उनको मैंने कहा कि अपने पहले 5 साल जो आपके करियर के होंगे कॉलेज से निकलने के बाद, आप पैसों के पीछे मत भागिए. आप कौन कितना सैलरी दे रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने अपॉर्चुनिटीज़ और अपने फ्रीडम के बारे में सोचिए. और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी हम जो बदलाव ला रहे हैं कि नए चैनल्स आ रहे हैं, रिपब्लिक आ रही है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होने वाले हैं, टेलीविज़न में भी और डिजिटल में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको झुकना नहीं पड़ेगा. तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. देयर मस्ट बी नो कॉम्प्रोमाइज़. ओके, चलिए, तो एक बार अब जोरदार तालियों के साथ अर्नब गोस्वामी को हम थैंक यू कहना चाहते हैं.